Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the topic I have taken from English grammar, the pronouns. I have taken this topic from my spoken English book, a fluent English book of a spoken. Before understanding pronouns, it is better for you to understand about parts of speech. What is parts of speech? Do you know? Somebody will understand it. All English words are divided into 8 kinds. According to their meaning and sense, the classification of words are called parts of a speech. Parts of a speech is divided in 8 kinds. These are noun, pronouns, adjective, verb, adverb, preposition, conjunctions, and interjection. What is pronoun? Pronoun is a word that used instead of a noun. Means pronoun is a word that is used instead of a noun. Pronoun एक ऐसा शब्द होता है जो किसी noun के बदले यूज किया जाता है. The repetition of noun in a sentence or a set of sentence is really boring. So grammar prescribes that instead of repeating the noun, we can use a word for that noun called the pronoun. This leads us to practice definition of noun. देखिए नाउन जो है एक ऐसा शब्द है जो प्रोनाउन के बदले यूज होता है. जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे रवि इज गोइंग टू मार्केट, रवि इज सिंगिंग, रवि इज परचेजिंग सम फ्रूट्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सेंटेंस को बार बार लिखते हैं और बार बार एक नेम को किसी नाउन को रिपीट करते हैं तो सेंटेंस बड़ा ही बोरिंग लगता है. तो उस नाउन के बदले में जिन शब्द का यूज किया जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउंस जो होते हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसका यूज केस स्टडी में होता है, इसका यूज एक्टिव पैसिव में भी होता है, नरेशन में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में. और हमारे स्कूल के बच्चे 8, 9, 10 या 6, 7 के बच्चे भी प्रोनाउंस पढ़ते हैं. आजकल तो LKG UKG में भी बच्चे पढ़ते हैं. लेकिन ये जो अभी मैं नाउन के विषय में, प्रोनाउन के विषय में जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे डिस्कशन है. ये हमारे कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्स में इसके डिस्कशन हो सकते हैं. तो pronoun, we are just discussing about pronoun. Pronoun is the word that used instead of a noun. अब pronoun के बारे में हम आज तक यही जाने हैं कि वो नाउन के बदले में यूज होता है. अब इसका देखिए, अब we will discuss the forms of pronoun. Personal pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns, relative pronouns, and interrogative pronouns. What is personal pronoun? Personal pronouns are three persons of the, there are three persons of the personal pronouns: first person, second person, and third person. All the three pronouns have three cases: nominative, objective, and possessive case. When we will study cases, these things will be more clear. But while studying the personal pronoun, these words are very important to understand. Firstly, I have written first person, and that is the case: nominative, objective, and possessive. We will discuss about first person nominative case. First person nominative case of singular is I and plural is we. First person objective case, singular number is me, objective I का me हो जाता है और I का possessive my और mine हो जाता है. तो objective case, singular number me and plural form of the object will be us. फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस माई और माइन होता है एंड द प्लूरल नंबर विल बी आवर और आवर्स.
यहाँ ये जानने की ज़रूरत है, जब हम लोग नरेशन या एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट आई मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है। ये सभी चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सेकेंड पर्सन, नॉमिनेटिव केस यू और दाव। दाव का जो यूज़ है ओल्ड इंग्लिश में होता था, वाई ई ए का भी यूज़ होता था, तो यू सिंगुलर भी है और यू प्लुरल भी है। अब ऑब्जेक्टिव केस सेकेंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर नंबर में भी यू आता है और प्लुरल नंबर में भी यू आता है। अब सेकेंड पर्सन के पॉसेसिव केस में हम आते हैं, तो पॉसेसिव केस में सिंगुलर नंबर में योर और योर्स आता है, और ये जो चीज़ है सेम प्लुरल नंबर में भी योर और योर्स आता है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के विषय में जाने थे। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ किए थे। फर्स्ट पर्सन जैसे आई वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे इत्यादि होता है। अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे दिया गया है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है, इसका डिफिनेशन इस प्रकार दिया गया है। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू आवर, योर, देम, we get compound personal pronouns where the action done by subject turns back upon the subject। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल में आप आएंगे, देखिए जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, जिस तरह से यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग सेल्फ लगा के यूज़ करते हैं। यानी यहाँ आई लिखा है, आई हर्ट, आई सेल्फ तो नहीं होगा, माई सेल्फ होगा, क्योंकि उसे किस चीज़ में ले जाना है, ऑब्जेक्ट्स के रूप में ले जाना है। तो यहाँ दिया गया है व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, यानी जब कभी भी सेल्फ, माई के बाद सेल्फ अगर ऐड होगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और आवर जैसे हम लोग, तो आवर है तो आवर सेल्फ्स होगा, ना कि सेल्फ। योर है तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, प्लुरल में। देम है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ हर्ट्स होना चाहिए, ही हर्ट्स हिमसेल्फ। थर्ड, यू, मुकुल एंड आई मस्ट नॉट डिसीव आवर सेल्व्स। आप, मुकुल और मैं एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। हियर द एग्जाम्पल 4, यू एंड हैरी मस्ट नॉट डिसीव आवर सेल्फ। आप और हैरी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। हिंट्स, हियर ईच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और सेम थिंग। यहाँ जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जो सेम पर्सन को रेफर्स करते हैं, आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, यू, मुकुल और आई, ये तीन चीज़ है यानी हम लोग हुए, तो इसका हो गया आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स। यू एंड हैरी, तो यहाँ पर भी ये कई लोग हो गए, तो ये भी हो गया आवर सेल्व्स। अब थर्ड इज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative means do you know the word demo? Demo means to recognize a thing you know for the first time is the demo. And demonstrative pronoun means the pronoun which points out objects which they refer to any particular person or thing are called indefinite pronoun. Are called demonstrative pronoun. Example. First, this is present from my uncle. This is the present from my uncle. This is the demo of the gift. I mean the present. This किसको demonstrate कर रहा है, यहाँ present को कर रहा है, यानी gift को कर रहा है। These are merely excuses. यानी these किसको यहाँ demonstrate कर रहा है, excuse को। Here this and these are demonstrative pronoun. This book is mine. This is
watching, etc. Form indefinite pronoun. Indefinite pronouns like somebody, few, anybody, some, anyone, all, everyone, many do not refer to particular person or things are called indefinite pronoun. Indefinite pronoun means somebody, few, anybody, some, anyone, all, everyone, and many that do not explain to a particular person like he, she, it. Okay, nobody was there to welcome her. Nobody means कोई नहीं was there to welcome her. कोई वहां उसे वेलकम करने के लिए नहीं था. ये इंडिफिनिट है. Some are born great. कुछ लोग महान पैदा हुए. Anyone can help. Many are called but few are chosen. अब इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each other neither are called distributive pronouns. Example: each of the student received reward. Each of the students, प्रत्येक स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट होगा यानी एवरी स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट मीन्स एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ बता रहा है. ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड अ रिवार्ड. एक एक स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट को यहाँ रिवार्ड दिया गया. प्रत्येक स्टूडेंट को. दिस मैन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड. इन लोगों में इन प्रत्येक लोगों में रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. एदर ऑफ यू कैन सिंग अ सॉन्ग. आप में से कोई गाना गा सकता है. यानी कि एदर चॉइस बता रहा है कि आप भी गा सकते हैं और आप भी गा सकते हैं. नेदर ऑफ द रोड गोज टू द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन कोई भी रोड नहीं जाता है. यानी इनमें से कोई भी रोड रेलवे स्टेशन नहीं जाता है. हिंट्स हियर each these other neither such as distributive pronoun refers to person or thing one at a time. Relative pronoun, it refers or relates to some noun going before which is called its antecedent. Antecedent means a thing that's come before another. I met Ravi who used to live here. I met Ravi who used to live here. यानी मैं रवि से मिला जो यहाँ रहा करता था. यानी हु का मतलब यहाँ जो है. हु जो होता है जो यहाँ रिलेट कर रहा है, संबंध को बताता है. I found the pen which I had lost. मुझे वो पेन मिला जिसे मैं खो चुका था. यानी which यहाँ भी संबंध को रिलेट करता है, लेकिन किस चीज़ को रिलेट करता है? ये इनएनिमेट थिंग यानी निर्जीव. पेन जो है वो इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग को मॉडिफाई कर रहा है या फिर रिलेट कर रहा है या रेफर कर रहा है. हियर इज द कॉपी दैट यू लेंट मी. तो इस तरह से हु और दैट का यूज कभी भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में जिंदा वस्तु के लिए यानी लिविंग थिंग के लिए करते हैं, और विच का यूज कभी भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में निर्जीव वस्तु या नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं. अब लास्ट में जो इसके रूल है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. द वर्ड एग्जाम्पल हु, विच, व्हाट, हुम. वैसे तो 9 होते हैं. हु, विच, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज. तो इन सभी का यूज यहाँ बताया जाएगा. और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे हु, विच, व्हाट एंड हुम इत्यादि WH वर्ड को लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हुज बुक इज दिस. किसका बुक है? यह किसका बुक है? यानी हुज बुक, किसका बुक, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. व्हाट विल ऑल द नेबर्स से. विच डू यू प्रिफर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक. जैसे किसी को हम लोग प्रिफर करते हैं कि सर आप कॉफ़ी लेंगे या फिर चाय लेंगे, उसी तरह से ये विच का यूज़ किया गया. हुम डू यू वॉन्ट टू हेल्प. आप किन की मदद करना चाहते हैं. हु इज़ दैट मैन. वह आदमी कौन है. हियर वर्ड्स लाइक हुज, व्हाट, विच, हुम एंड हु एज यू नो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव pronoun. Behavior of pronoun. Today we are going to discuss a very important thing.
अब देखिए यहाँ पे एक 231 का रूल आपको बताएंगे। 231 क्या होता है? कोई ये मैथमेटिक्स नहीं है। रूल 1 में दिया गया है, इफ द प्रोनाउंस of different person are used together in a same sentence, they are arranged in order. किसी भी सेंटेंस में जब एक से अधिक, दो या तीन, खास करके जब तीन सब्जेक्ट आते हैं, तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? जब कभी किसी भी सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि देखिए, जैसे कि यू आ गया या ही सी कुछ भी आ गया और तीसरा सब्जेक्ट आई आ गया। जब तीन सब्जेक्ट आते हैं तो उसको कैसे अरेंज किया जाता है, उसका भी एक तरीका होता है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट दिया रहे तो हम लोग पहले सेकंड पर्सन को अरेंज करते हैं। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही सी इट और दे। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पहले ऐड होगा, तो जैसे यू, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज होता है ही शी इट और दे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है। तो जैसे कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर हम ऐसे लिख देते हैं, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प द पुअर मैन, सेंटेंस अपने हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिक व्यू में अगर इसे देखा जाए, फॉर्मल व्यू में अगर इसे देखा जाए, तो यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पहले फर्स्ट पर्सन आई का यूज कर दिया गया है। आई को कहाँ रखना है? यहाँ लास्ट में रखना है। और सबसे पहले किसको रखना है? सबसे पहले यू को रखना है। यू, ही एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो यही 231 का नियम होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें 2, 3 एंड 1 का नियम अप्लाई करेंगे। यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प द पुअर मैन, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ये भी इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये करेक्ट है। हिंट्स, नेवर यूज्ड 1, 2, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसी भी सेंटेंस में आप एक साथ यूज नहीं करें, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी मस्ट यूज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, 231 यानी 231 in each of a correct sentence. Now we will discuss the rule third. Rule second. When two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them should be plural. यहाँ कहा गया है कि जब कभी हम दो नाउन को एंड से कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें जो वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और प्लूरल एक से अधिक नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे शुभ एंड मन आर ब्रदर्स, दे प्ले क्रिकेट, दे लिव्ड इन वाराणसी। शुभ और मन क्या है? भाई है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। यानी शुभ एंड मन दोनों ये सिंगुलर नाउन है और इस दोनों को एंड से कंबाइंड किया गया है, इसीलिए एक और एक दोनों को मिलाने के बाद ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसीलिए किस वर्ब के साथ वो एग्री कर रहा है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एग्री कर रहा है। अगर यहाँ हम इज लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड, मान्या एंड स्मृति आर क्लासमेट्स। मान्या और स्मृति क्या है? क्लासमेट्स है। तो यानी यहाँ भी स्मृति और मान्या को जो सेंटेंस है इसमें एंड इसको कनेक्ट कर रहा है। एंड क्या है? कंजक्शन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, और इसीलिए इसके साथ वो कौन सा वर्ब आ रहा है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब से ये एग्री कर रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ, राकेश, सनी एंड रवि लिव इन मुंबई। राकेश, सनी एंड रवि, ये तीन लोग हैं, इसीलिए ये भी क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। यहाँ देखिए वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब दिया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल के साथ वर्ब 1 लगता है, जैसे लिव V1 है, और इसमें V और V5 का यूज, एस और यस वाले वर्ब का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। दे आर वर्कर्स, हिंट द प्लूरल नाउन्स टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूल थर्ड, बट इफ द नाउन्स ज्वाइंड एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द प्रोनाउन यूज शुड बी सिंगुलर। यदि कोई भी नाउन्स सेम पर्सन और सेम थिंग के लिए यूज होता है तो उसे हम सिंगुलर में ही रखते हैं। जैसे इसमें लगता है जैसे कि एक से अधिक सब्जेक्ट्स हैं। जैसे देखिए, मिस्टर सिंह
माई मिस्टर सिंह माई फ्रेंड एंड लेक्चरर ऑफ दिस कॉलेज इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। यानी मिस्टर सिंह हैं जो मेरे दोस्त हैं और लेक्चरर हैं, इस कॉलेज के लेक्चरर हैं, वो क्या है, अच्छे व्यवहारिक हैं। कहने का मतलब है कि ये एक ही लोग के बारे में बोल रहा है, मिस्टर सिंह और माय फ्रेंड, ये कोई दो लोग नहीं है, ठीक है। और लेक्चरर ये कोई तीसरा आदमी नहीं है, बल्कि एक ही लोग को 3 बार कहा गया है, इसीलिए इसके यह जो है सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेगा। वाराणसी द ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल एंड द सोल ऑफ इंडिया and the soul city of India and soul of India is famous for its historical monuments। यानी वाराणसी क्या है, ब्यूटीफुल सिटी है। वाराणसी को ही बता रहा है कि ब्यूटीफुल सिटी है और सोल ऑफ इंडिया है, इंडिया का एक हृदय के रूप में है। यानी ये 3 जो सब्जेक्ट्स के रूप में यहाँ आए हैं वो एक ही सिंगल सब्जेक्ट वाराणसी को ही मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट न मान के हम इसको क्या मानेंगे, एक ही सब्जेक्ट मानेंगे और इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब इज से एग्री कर जाएगा। रूल 4, व्हेन 2 सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय and are preceded by each or every, the pronoun used must be singular and should agree in gender with the second noun। अगर जब कभी किसी सेंटेंस में 2 सिंगुलर नाउन आते हैं और इच और एवरी से वो जुड़ते हैं, इच और एवरी प्रोनाउन से वो जुड़ जाते हैं, जैसे इच मैन, एवरी बॉय, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ इसको एग्री करके सेंटेंस को लिखते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन। हालांकि इसमें कोई ऐसा सेंटेंस नहीं लिया गया है जो कंफ्यूजन पैदा करे। सेंटेंस इज वेरी सिंपल। सेंटेंस कैनॉट डिफाइन हियर, इज इट सिंगुलर, इज इट प्लूरल, ओके। Each boy and each girl went to her house। Second example, rules 5, when 2 different nouns are joined by either or, neither nor, the pronoun is used according to the number and gender of the second noun। देखिए, ऐसे ही जब कभी किसी सेंटेंस में either or या neither nor आता है तो उसमें जो प्रोनाउन होते हैं तो उसमें जो उसका जेंडर होता है, यानी जो नंबर और जेंडर होता है वो सेकंड नाउन के अनुसार चेंज होता है। जैसे देखिए, एदर योर ब्रदर एंड यू, एदर योर ब्रदर एंड यू। तो यहाँ देखिए आपका भाई या आप। तो यहाँ जो सेंटेंस है, चाहे आपका भाई या आप, कोई चॉइस ऑफ वन, इस दोनों में से किसी एक चॉइस को बता रहा है। और यहाँ क्या दिया गया है कि ये चीज़ जो है सेकंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर जाएगा यहाँ। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो वर्ब आएगा हैव, वो हैव के साथ एग्री करेगा। तो इसीलिए लिखा गया है एदर योर ब्रदर एंड यू हैव डन योर वर्क, नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन हिज क्लास। ना तो स्टूडेंट्स ना ही शिक्षक क्लास में हैं। तो ये जो सेंटेंस है, नेदर के बाद स्टूडेंट्स आया है और फिर टीचर आया है, ना तो छात्र और ना ही टीचर, शिक्षक कहाँ है, क्लास में है। ना तो छात्र ही ना तो टीचर ही क्लास में है, यानी टीचर से ये वर्ब एग्री कर गया है। सो फ्रेंड्स, रूल 6, the pronoun coming after them must be in the same case as that coming before them। The pronoun coming after them, pronoun जो होता है वो then के बाद आता है किसी भी केस में। as that coming before them, she plays better than me, she plays better than me। अब देखिए, तो she plays better than me, ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में जो दिया गया है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है मी, वो इनकरेक्ट होता है। तो इसमें जो जैसे मी यहाँ लिखा गया है वो चेंज हो जाएगा। ही प्लेज बेटर देन आई, वो मुझसे
अच्छा है, वो मुझसे अच्छी है। और सेकंड में है हिज एल्डर सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, ये भी इनकरेक्ट है। उसकी बड़ी बहन उससे ज्यादा तेज है, तो यहाँ हिम नहीं होगा। हिज एल्डर सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। रूल 7, मेनी अ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मेनी अ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेगा। जैसे मेनी अ स्टूडेंट हैज मेट हिज कॉलीग्स इन स्कूल। मेनी अ स्टूडेंट, बहुत में से कुछ लोग या एक स्टूडेंट क्या करेगा, अपने कॉलीग से मिलेगा। मेनी अ मैन, बहुतों में एक दो यानी एक। हैज सर्व हिज कंट्री नोबली, लाखों में एक दो लोग इस कंट्री को अच्छे लॉयल पूर्वक यानी मतलब अच्छे तरीके से इसको सर्व करते हैं। सो फ्रेंड, what do you feel about that video? So this is your friend Mithlesh Pandey requesting you to like, share, and subscribe my channel and give your views. If I get any mistakes, please you correct it. I shall be heartily obliged for this. Thank you. Have a nice day.